Good morning, guys. So, how are you all? Today we are going to study the first chapter of English. It's invocation. Okay. First of all, I want to tell you that it's a poem. Invocation means it's a type of prayer. Okay. In Hindi we can say Vandan, Abhinandan means like Mangalacharana. So invocation एक poem है. This poem has been taken from Atharva Veda and it has been translated in English by Dr. Avinash Chandra Bose. The poem has been taken from Atharva Veda and has been translated by Dr. Avinash Chandra Bose. So, what is the message of the poem? Guys, किसी भी poem को पढ़ने से पहले we should have the knowledge about that poem कि क्यों वो लिखी गई है और उसका मैसेज उसका पर्पस क्या है. ओके, सो इन्वोकेशन का मैसेज जो है वो है वर्ल्ड पीस. क्या है? सारे वर्ल्ड में पीस, सारे वर्ल्ड में पीस यानी शांति हो. दिस इज द मैसेज ऑफ द पोएम. ओके, सो पोएम की स्टार्टिंग कैसे कर पूरी जो पोएम है उसमें 8 लाइन 8 लाइंस में कंप्लीट हो जाती है पोएम. तो स्टार्टिंग में करता हूँ. मुझे थोड़ा जो लाइंस हैं वो याद है, जितनी भी जिस तरीके से तो आप पढ़िएगा. आपके पास बुक होगी तो आप लोग अपनी बुक को ओपन करके फर्स्ट चैप्टर देख सकते हैं और वहां पर आपको पता चलेगा. The poet says that let's have conquered with our own people. Let's have conquered. तो एक वर्ड मीनिंग आती है conquer. What does it mean? Conquered का मतलब क्या होता है? पोएट कह रहा है कि let us have conquered with our own people. आओ conquer करें with our own people. इसके साथ own people के साथ. Conquered का मतलब होता है मित्रता, peace among foreigners and native, है ना. So conquered means to establish friendship, to establish friendship among our people and foreigners, to establish peace among people. Own people means क्या होता है? Own people कौन होते हैं? मैं आपको बता दूं. Own people means our neighbors, our friends, our relatives, our countrymen. Okay, they are our own people. Friends, relatives, na countrymen. In this way. So what is the first line of the poem? Let us have conquered with our own people. Let us have conquered. आओ conquered करें. आओ friendship को establish करें. किसके साथ? own people के साथ. मतलब अपने लोगों के साथ. हमारे friends, हमारे relatives, हमारे neighbors, पड़ोसी और हमारे countrymen के साथ हम लोग क्या करें? conquered करें. friendship establish करें. Then उसके बाद then we should conquer with strangers also. Strangers. Strangers का मतलब होता है अजनबी, है ना. लेकिन यहाँ पर strangers का मतलब होगा foreigners. क्या होगा? foreigners. विदेशी. out of India. हम लोग नेटिव लोग हैं यानी सारे इंडियंस कंट्रीमैन हैं और foreigners हो जाएंगे जो out of India हैं. तो पोएट का कहने का मतलब है सबसे पहले we should have conquered with our own people and then we should conquer with strangers यानी foreigners. उन लोगों के साथ whom we don't know and they belong to different culture and different land. Own people means the people whom we know very well and we share our joy and sorrow with them.
they belong to our land, our culture. And foreigners and strangers means they belong to different culture, different land. They use different languages also. So these are the two lines of the poem. First two lines. अब समझना ध्यान से, हर एक लाइन पोएम को केवल इंग्लिश से हिंदी करके नहीं समझा जा सकता। पोएम के भाव में जाया जाता है, पोएम के उस फील को समझा जाता है जो वो बताना चाह रहा है ना, समझना। तो ये हो गया आपका दो लाइन्स। Let's have compared with the ruling people and we should have compared with the strangers. Ashwins, third line. Ashwins, the dual gods, create a unity of heart between natives and strangers. Ashwins. Ashwins कौन है? Ashwin dual gods हैं actually. ये डुअल वर्ड्स कहे जाते हैं अश्विन क्योंकि ये 24 आवर्स साथ में रहते हैं। तो साथ में रहना यानी यूनिटी है इनके अंदर, यानी क्या है? एकता है, समझ रहे आप? सो दे आर द परफेक्ट सिंबल ऑफ यूनिटी। तो जो पोएट ने पोएम को अथर्ववेद से लिया है, उस पोएम में अश्विन के बारे में बात की गई है, इसलिए की गई है ताकि आपको ये पता चले कि अश्विन एक आर्ट ऑफ यूनिटी क्रिएट करते हैं बिटवीन अस एंड स्ट्रेंजर्स। यानी कहने का मतलब ये है कि हमें अपने और स्ट्रेंजर्स के बीच में एक यूनिटी ऑफ हार्ट कनेक्ट करना चाहिए। आज हम पड़ोसियों से लड़ते हैं, समझ रहे हैं आप? आप अपने दोस्तों से लड़ते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, परिवारों में होते हैं, उसके बाद बाहर विदेशों में भी हमारे झगड़े पाकिस्तान या चीन के साथ चल रहे हैं। तो समझना, अगर हम अपने लोगों के साथ नहीं झगड़ेंगे ना, पहले उन लोगों के साथ को एस्टैब्लिश कर लो फ्रेंडशिप, पहले अपने लोगों के साथ को अच्छे से रहो, उसके बाद दूसरों लोगों के साथ भी अच्छे से रहो, तो क्या होगा? वर्ल्ड पीस होगी। और यही इस पोएम का मैसेज है कि सारे वर्ल्ड में पीस हमें लाना है। कहने का मतलब यही है कि अश्विन का इसलिए यूज किया गया कि अश्विन यहाँ पर शो कर रहे हैं कि भाई यूनिटी में रहो। अश्विन सिंबलाइज परफेक्ट यूनिटी, दे क्रिएट अ यूनिटी ऑफ हार्ट बिटवीन अस एंड द स्ट्रेंजर्स, कि हम लोगों को साथ में रह करके जो है काम करना है, पीस लानी है वर्ल्ड। सो 4 lines of the poem have been completed. नेक्स्ट 4 lines में हम चलते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप, और यहाँ पर ये जो लिखे हुए हैं वो आप लिख लेंगे। अब मैं आपको अगली लाइन्स में ले चलता हूँ, अगली 4 लाइन्स में। यूनाइट इन आवर पर्पसेस। मे बी यूनाइट का मतलब जानते हैं आप, इट्स अ नाउन। यूनाइट एक नाउन है और यूनिटी एक, यूनाइट एक वर्ब है और यूनिटी एक नाउन है। यूनाइट मतलब एक होना, एक हो जाना, यूनिटी मतलब एकता। तो वो कह रहा है मे बी यूनाइट इन आवर माइंड्स, यूनाइट इन आवर पर्पसेस। यूनाइट इन आवर माइंड्स मतलब पोएट कह रहा है कि हमें अपने सभी लोगों को अपने अपने माइंड्स में यूनाइट हो जाना चाहिए, एक हो जाना चाहिए। माइंड का मतलब दिमाग नहीं है, माइंड का मतलब है यहाँ पर थॉट्स। क्या है? थॉट्स। हमें अपने अपने थॉट्स जो है एक कर लेने चाहिए, वर्ल्ड पीस का थॉट हमारे दिमाग में बनना चाहिए। पर्पसेस हमारे जो उद्देश्य हैं, इंटेंशंस कह सकते हैं इसको, ठीक है। हमें मे बी यूनाइट इन आवर माइंड्स, हमें अपने थॉट्स को भी एक करना है और अपने पर्पसेस को, अपने इंटेंशंस को भी एक करना है। हमारे इंटेंशन, हमारा इरादा होना चाहिए कि सारे वर्ल्ड में पीस हो, हमारे थॉट्स बनने चाहिए कि सारे वर्ल्ड में पीस हो, लड़ाई झगड़े ना हो, हमें किसी से जो है लड़ाई झगड़ा ना करना पड़े, कोई भी प्रकार का डिस्प्यूट ना हो। तो मे बी यूनाइट इन आवर माइंड्स, यूनाइट इन आवर पर्पसेस। We should not fight against our divine spirit. हमें अपनी डिवाइन स्पिरिट के अगेंस्ट में नहीं लड़ना चाहिए। डिवाइन स्पिरिट
एक डिवाइन स्पिरिट का मतलब होता है गॉडली सोल, दैवी आत्मा। देखिए मैं आपको बता दूं कि सभी के अंदर दो प्रकार की जो है आत्माएं पाई जाती हैं। आत्मा एक ही होती है, दो प्रकार के उनके जो है भाग होते हैं। जैसे एक हो गया डिवाइन, एक हो गया डेविल। आपके मन में अगर अच्छे विचार आते हैं तो आपकी वो डिवाइन सोल उन विचारों को उत्पन्न कर रही है। आपके मन में गलत ख्याल आते हैं, यानी कुछ बुरा आ रहा है, कुछ पाप आ रहा है, तो वो डेविल का काम होता है, तो वो डेविल सोल है। और जब आप अपनी डिवाइन स्पिरिट के अगेंस्ट लड़ते हो तो डेविल सोल हावी हो जाती है और आपसे वो सारे काम गलत करवा देती है। ये लड़ाई झगड़े, ये चुगली करना, ये मतलब कुछ भी गलत करना, ये सब डिवाइन स्पिरिट के अगेंस्ट में लड़के होता है। आप कभी भी कोई गलत काम करोगे आपके मन में आएगा पहले यार नहीं, ऐसा नहीं। लेकिन जब आप अपनी डिवाइन स्पिरिट के अगेंस्ट लड़ने लगते हो तो आफ्टर दैट फाइटिंग आपकी डेविल स्पिरिट हावी हो जाती है और उसके बाद क्या होता है कि आप वो काम कर देते हो जो आपको नहीं करना चाहिए। तो मे वी यूनाइट इन आवर माइंड्स, यूनाइट इन आवर पर्पसेस। हमें अपने माइंड्स यानी थॉट्स में हमें यूनाइट होना है। एंड देन आवर पर्पसेस मींस इंटेंशंस में हमें अपने एक होना है, सो दैट वी मे ब्रिंग वर्ल्ड पीस इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। डिवाइन स्पिरिट, वी शुड नॉट फाइट अगेंस्ट आवर डिवाइन स्पिरिट। हमें अपनी डिवाइन स्पिरिट के अगेंस्ट में लड़ना नहीं चाहिए, ताकि हम जो हमारे माइंड्स में जो हमारे थॉट्स हैं, जो हमारे इंटेंशंस हैं, वो क्लियर रह सकें। थर्ड लाइन है द पोएम says, let not the battle cry rise amidst many slain. Let not the battle cry, let not the battle cry rise amidst, amidst, amidst many slain, slain। समझिएगा कि let not the battle cry rise। आपने देखा होगा पहले के ज़माने में भी ऐसा होता था, महाभारत देख लो या कोई भी और युद्ध होते थे, बैटल्स होते थे, हिस्ट्री में भी आपने पढ़े होंगे। तो बैटल्स में क्या होता है, वी हैव ऑलरेडी लॉस्ट अ लॉट ऑफ लाइव्स एंड प्रॉपर्टीज, है ना, एंड बैटल्स ब्रिंग डिस्ट्रक्शन। तो वही बताना चाह रहा है पोएट कि लेट नॉट द बैटल क्राई राइज, बैटल क्राई मत बढ़ने दो, बैटल होने ही मत दो, क्योंकि बैटल होते हैं तो क्राई बढ़ती है। लेट नॉट द बैटल क्राई राइज, उसको राइज मत होने दो। एमएस का मतलब होता है क्योंकि इस बीच में मैनी स्लेन यानी होता है किल, मरना या मारना। यहाँ पर स्लेन का मतलब होगा युद्ध में मारे गए लोग। तो लेट नॉट द बैटल क्राई राइज एमएस, क्योंकि इस इन युद्धों के बीच में मैनी यानी कई लोग, स्लेन यानी मारे जाते हैं, है ना। एंड नॉट द एरोज ऑफ द वॉर गॉड, मैं यहाँ लिख देता हूँ, nor the arrows of the war god fall with the break of the day। जो वॉर गॉड हैं हमारे, उनका पहले क्या होता था ना कि एक नियम होता था, एक लॉ होता था कि जैसे ही वॉर गॉड ने एरो चलाया युद्ध की शुरुआत हो गई। ब्रेक ऑफ द डे का मतलब जानते हैं आप? 10 सेकंड दे रहा हूँ, बताओ मुझे, यहाँ लिख देता हूँ। ब्रेक ऑफ द डे, इसको कई लोग गलत समझते हैं। ब्रेक ऑफ द डे का मतलब क्या होता है? डे का ब्रेक हो जाना, यानी जब नाइट खत्म होती है ना और जब डे शुरू होता है, समझ रहे हैं? तो ब्रेक ऑफ द डे कहलाता है, उसको DAWN बोलते हैं डॉन। और जब शाम होती है उसको डस्क बोलते हैं, संध्या। ये हो गया भोर रात का, ठीक है। तो ब्रेक ऑफ द डे के टाइम पर एरो ऑफ द वॉर गॉड चलता है, जिससे युद्ध की शुरुआत होती है। तो पोएट वही कह रहा है फोर्थ लाइन है, लास्ट लाइन में, कि जैसे लेट नॉट द बैटल क्राई राइज अमidst many slain, nor the arrows of the war god fall with the break of the day। यानी ब्रेक ऑफ द डे पर जो एरोज हैं वॉर गॉड के, वो चल ही ना दो। जब वो नहीं चलेंगे तो ये होगा क्या? नहीं होगा। पहले के ज़माने में काफ़ी ऑनेस्टली जो है बैटल्स होते थे। जैसे ही सनसेट हुआ तो अगर कोई मार रहा है, सनसेट होते देख लिया तो वो वापस अपनी सोच रख ले कि भाई मारना नहीं। बहुत ऑनेस्टली होता था ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो एक बार पूरा ये आप स्क्रीनशॉट ले लें, है ना। ये बैटल कराया आपको समझ में आ ही जाएगा, एमएस यानी बीच में, और ये स्लेन का मतलब होता है किल, यानी मारे गए लोग युद्ध में, ठीक है। तो मैं आपको थोड़ा सा एक बार शॉर्ट में बता देता हूँ फिर से समरी में कि अकॉर्डिंग टू द पोएट देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पीपल। द फर्स्ट टाइप ऑफ पीपल आर आवर ओन पीपल एंड द सेकंड टाइप ऑफ पीपल आर स्ट्रेंजर्स। आवर ओन पीपल मींस आवर नेटिव्स, आवर फ्रेंड्स, आवर कंट्रीमैन,
whom we know very well because they share our joy and sorrow. And the second type of people are strangers, means foreigners. They belong to different culture and different land, and they have their own ways, they have their own languages. And Ashwins, who are the perfect symbol of unity, they create a unity of hearts between us and the strangers, between the natives and the foreigners, so that the world may have peace. Okay. And the next goal is, may we unite in our minds, unite in our purposes. हमें अपने minds and purposes माने intention, इस चीज को खास ध्यान रखना। पूछा जाता है minds का मतलब दिमाग या brain नहीं होगा, thoughts होता है, ठीक है। purposes का मतलब intention। तो may we unite in our minds, हमें अपने minds को unite करना है, अपने thoughts को unite करना है और अपने purposes को unite करना है। We should not fight against our divine spirit, और divine spirit के against में हमें लड़ना नहीं है। Let not the battle cry arise amidst many slain, क्योंकि मारे जाते हैं। We have already fought many battles, we have lost a lot of properties, life, so we should avoid wars, हमें avoid करना चाहिए। We should resolve all the matters peacefully, हमें सारे matters peacefully, सारे issues जो हैं वो in a peaceful way हमें resolve करने चाहिए। And now the arrows of the warlord fall with the breath of the day, तो ये मैंने अभी बताया आपको कि जब उनका arrow चलेगा नहीं तो फिर युद्ध हो गई। ओके, सो ये थी समरी। बाकी क्वेश्चन आंसर्स आपको मैं PDF के थ्रू भेजूंगा या फिर उसके थ्रू। थैंक यू वेरी मच।